also taught the many refresher courses for the assistant professor in the University of Lucknow. And I visited many other universities like Siddhartha University, IIM University. And by this December, I will be August in the Kuala Lumpur, Malaysia, for delivering my own session on very new research. So this is all about my own area of study. One of my student, Mr. Vas, has joined us, and he has done BTech in mechanical engineering, and he was working in the construction area. Then he did his MBA finance from Symbiosis, and ultimately came to me after 10-12 years of experience. So last time I gave my name as a supervisor, and his work is very technical about the project, about its completion and cost cutting. So this is all about. I am mentoring around 5 PhD students. One is on the verge of submission, and others are already taking the classes. I teach these PhD students on regular basis, weekly. Every Saturday, I ask them to join my classes. Thank you, sir, and very nice that you all have given me the time and chance to express my opinion about the new topic. Though the topic has been now little older, but actually this service performance, service quality started in 1985 when one Indian professor, Parasuraman, he graduated from IIM Ahmedabad and joined the United States, and there they thought about. So it is 1995 actual the year, and up to 225, the basic structure what they had designed. Since then, almost more than 200 PhD, I think they have given, my people have completed on the same topic, on the same area, and became very important because of the quality environment and quality movement started in Japan. So just to start my own complete session, I'll try to explain in a very different manner. See, all professional education. In the meantime, I will welcome Aarti Mehra and Sudhir Raheja, and I will request Chandresh और एक बात और request करेंगे because प्रभावती has requested that उसको अंग्रेजी समझने में दिक्कत होती है, तो that should be हिंदी इंग्लिश mixed lecture आपका हो तो उसको भी समझ में आएगा. And there are some other people, there may be some other people also जिनको इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत होगी, so we will be talking in both the languages for the convenience of these people who don't understand English properly. तो मैं अपने चंद्रेश्वर खान साहब से कहूँगा कि वो स्वागत भी कर दें और एक छोटा सा भगवान का श्लोक भी कह दें जिससे कि हम लोग का ये वेबिनार सफल हो. और रंगा राव जी के लिए तो इंग्लिश हिंदी दोनों बराबर है, तो रंगा राव जी को हिंदी बोलने नहीं, इंग्लिश बोलने नहीं आती और प्रभावती को इंग्लिश ये हिंदी बोलने नहीं आती और प्रभावती को इंग्लिश बोलने नहीं आता, समझ में नहीं आता, तो दोनों का एक मिक्स लैंग्वेज बिकॉज यू आर रिनॉन प्रोफेसर, तो हम लोग ऐसे करेंगे. चंद्रेश्वर खान साहब आप शुरू करें प्लीज. जी बहुत बहुत धन्यवाद. वार्म वेलकम अविनाश प्रसाद जी फ्रॉम कलकत्ता. इज गोल्ड मेडलिस्ट और बहुत सारे प्रोफेसर इज गोल्ड मेडलिस्ट इन लॉ फ्रॉम कलकत्ता यूनिवर्सिटी फ्रॉम बिहार. इज he has taken gold medal in law after Dr. Rajendra Prasad. तो वेलकम अविनाश प्रसाद जी. चंद्रेश्वर खान साहब जी धन्यवाद. आज हम लोग बड़े ही एकम्प्लिश प्रोफेसर को सुनने जा रहे हैं और मुझे लगा कि आज की प्रार्थना ऐसे विद्वान और ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक है जो अपने आप में प्रबंध है और आज का विषय भी वो है जिसमें ये कहा गया है, ये मंत्र भी है, सा विद्या विमुक्ते. विद्या वो है जो लोगों को लिबरेट करे. यदि लिबरेशन नहीं हुआ फ्रॉम वेरी वेरी काइंड ऑफ थिंग और ऑल ऑफ यू आर
so learned that you will understand the deeper meaning of liberation. कि आंतरिक उन्मुक्तता, स्वतंत्रता यदि नहीं मिली तो ज्ञान हमें नहीं मिला है। तो उसी से मैं प्रार्थना करूंगा शिव जी की पहले कर्पूर गौरंग करुणावतारं संसार सारंग भुजगेंद्रहारं सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिव साक्षात गुरु हैं, परम गुरु हैं, लेकिन गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, साक्षात गुरु परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु की इस भावना के साथ सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणत्र्यंबके अम्बे गौरी नारायणी नमस्तुते। और इसी श्रृंखला में प्रभावती हम लोगों के बीच में है, तो साक्षात सरस्वती भगवती देवी को वो प्रेजेंट करती हैं। मैं सभी विद्वान जनों का सादर स्वागत करता हूँ। और डॉक्टर राम कोमल, राम भी हैं, कोमल भी हैं, और राम अपने आप में मर्यादा है। और मैनेजमेंट के प्रबंध के जिन आयामों की इन्होंने चर्चा की है उससे ये साफ परिलक्षित है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि इन्होंने इसके रहस्यों को अपने और अपने शिष्यों के माध्यम से, क्योंकि मैं भी पिछले 50 वर्षों से मैनेजमेंट के फील्ड में हूँ, देश विदेश के संस्थानों, हार्वर्ड को छोड़ करके बाकी सब, तो बड़ा अच्छा लगा है डॉक्टर राम कोमल का स्वागत करते हुए। और उतने ही जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, एक एक लोग, उमेश जी से लेकर के ज्योति साहब से लेकर के डॉक्टर राजेश तक, मैं जितना देख रहा हूँ, अनुराग जी है, प्रभावती है, विनय जी है, शुक्ला जी है, जो सब तक लोगों की आपके बात को पहुंचाएंगे। और भी 3 हमारे मित्र हैं जिनका नाम नहीं आ रहा है, अमिताभ जी, उनका भी स्वागत नाम लेकर के कर देंगे। बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली दफा भी जब हम लोगों ने डॉक्टर राम कोमल को सुना था तो इन्होंने विदेश को भी बांध लिया था। तो ये मैं इसलिए तो कहा राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो ये बार बार कहा गया है, और इन सारी चीजों का लगाव शिक्षा और उसकी गुणवत्ता से है। मेरा शोध का विषय टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट रहा है, इवॉल्विंग ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी फॉर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी सर्किल एट द वेरियस लेवल। तो ये मैं साथ जोड़ता चलूं कि डॉक्टर कारू इशिकावा हमेशा बोलते थे, जिनका नाम बहुत लिया जाता है, तो जो इन्होंने भारत से ही लिया था, उनमें नम्रता थी इन चीजों को कहने की कि सारी चीजें जो हैं वो एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, लर्निंग, एजुकेशन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, लर्निंग, डेवलपमेंट, एजुकेशन से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो वो स्किल बड़ा खतरनाक होगा। उस मोड़ पर हम लोग हैं। तो आज डॉक्टर राम कोमल का जो टॉक होगा, मुझे लगता है कि ये भगवान की, भगवती की विशेष कृपा है कि अमिताभ जी हमेशा रत्न को ढूंढते रहते हैं और रत्न इन्हें मिलते रहता है, और उन रत्नों से जो मिलाने का काम ये करते हैं, इसके लिए साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्रणाम और स्वागत प्रारंभ में। थैंक यू सो मच। अब अमिताभ जी इसको आगे बढ़ाएं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आशीर्वाद आपने दिया। और अब मैं अपने राम कोमल साहब से कहूंगा कि अब आज का कार्यक्रम शुरू करें, प्लीज। थैंक यू सर।
So nice. Yeah. Answer So nice. and Sasa. I have thought to just explain all higher and professional education that is going on throughout the world and India especially. So when it comes to some numbering, so USA, China, India, these three countries comes forward in the case of registering the number of students. We are almost third biggest country who has largest students in all area, right from the basic education up to the doctorate education. इसमें थोड़ा एक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि हम हायर प्रोफेशनल को ही लेने जा रहे हैं आज, और इसमें ये बात कही गई है कि भारत में हायर प्रोफेशनल के कोर्स कैरिकुलम डेवलपमेंट में उनका मॉनिटरिंग करने के लिए, उनकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए through the constitution there are certain councils, there are certain commissions. अब जितना भी फॉर्मल एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लुक आफ्टर, मेडिकल एजुकेशन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया लुक आफ्टर, डेंटल एजुकेशन डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया लुक आफ्टर, engineering and management all India Council of Technical Education, it is the statutory body for maintaining all kind of quality students criteria, admission, faculty norm for this recruitment, many other things. All councils, whether it is architecture, we have Architecture Council of India, we have Pharmacy Council of India. These councils are made with the objective that these council will take care of these higher education. One book was published by one of Indian fellow and 3-4 of the United States and published through Harvard Business School. Management at a Crossroad by Srikant Datar and 3 other names in 2000. And they have declared that particularly the management education is on crossroad. Similarly, looking the performance of Indian students in India, the same thing is coming, that engineering education is also on crossroad. So today's talk, I will be concentrating only these 2 areas, engineering and management. Number of scholars, researchers, since it is a service sector, has given their own opinion. Basically, we have 3 categorization of education system. First, we read science, then comes engineering, then comes humanities. It is my own thought that I classify in the 3 areas only. Science stream, all physical sciences, be it biology, be it physics, be it chemistry, whatever, agriculture. Science gives concepts, theory, formula. But scientists never developed any product for commercialization and any other thing for the need of the people who can use. So science is an area where the mind expands and get conceptualization of public importance and needs, and they develop different theory. Then goes to engineering students. Engineers do not develop any theory, rather they use the theory of the scientist and apply in their workshop, in their laboratory, and make some product for industry and commercialization, profitability, as well as serving the human, making their work easy. And then comes to humanities, that covers all the subjects. Management and economics comes under the humanities, though economics is after 1968, it came into the area of science, so we say economic sciences and Nobel started. Previously, economics was not treated as science, so there was no Nobel. So thereafter, economics and management
these are the delivery sciences subjects. Delivery sciences means pure science, physical science, conceptualize, give some theory, make things clear through their formula development. Engineering, use those theory, concept, formula, and make some product that can be sold, and the product can make the life of the people easier. And humanities, the third category, particularly management, economics, commerce, these are the delivery sciences. They deliver whatever industry produce, whatever the engineers make. And not only engineers, they are delivers all kind of social services also. Means enriching the minds of people, making them capable, good thinker, logical thinker. It is in the hands of the humanities. So I say it is a delivery sciences. So pure science, engineering, and delivery sciences. So three classification. Now come to the engineering and management. Particularly management was for the elite classes, people who were of well-off families and business family. Those students were getting admission to the management area, and they were being taught all the skills and norms, how to use the tricks, tactics, the strategies in their business. But later on, around 1995, after the globalization, engineering, management, medical, dental, pharmacy, all courses, the private party were invited only just to compare the per lakh population, how many people getting scientific education. So number of private players came into, started their universities, started their colleges, and ultimately by 2000 the comment started coming that these two courses are coming to crossroad. They are not delivering the good quality of education. They are not delivering the good quality engineers. They are not delivering the good quality managers and scientists. So this is the basic thing. So after the book came by Srikant Datar and many others from Harvard, so it was putting many questions. Even AICTE and UGC have a difference that whether management to put into the technical education or put into the formal education. If economics is as a formal education, why management is under the technical education? So there are a number of arguments. Still, it is going on. Why to understand the MBA or management is the professional. What is the basic definition of professional? A CMA, a CA may be a professional, but how this management person will become a professional? So number of arguments are being there, but still it is under the purview of All India Council of Technical Education. Now I would share my some PPT, and simultaneously we'll discuss. When one PPT will finish, then I'll give time to all the participants and gurus and many others to discuss and give their own opinion. So shall I share my PPT? Sure. Okay, sir. So just I'm sharing. Full screen out. It has come. Binaji, tell me how to come into the sharing part. Vinay Shukla ji. विनय बताइए जरा कैसे होगा। आ गया सर शेयर इंटायर स्क्रीन तो है।
विनय शुक्ला जी जरा बताइए, विनय शुक्ला जी। 1 minute, sir. I'm Yes. sharing. I'm trying. या Screen is visible, sir. अभी तो स्क्रीन नहीं आई है, नहीं है, अभी नहीं आया। अभी नहीं आया। 1 minute. Just I'm sharing. Screen has come, sir. नहीं सर, अभी नहीं आया। विनय जी के पास में आप भेज दीजिए, विनय जी को करने में सुविधा हो जाएगी। शायद मैं जानता नहीं। या ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उसको देख के ही बताइए, हम लोग को समझ में आ ऐड हो जाएगा, जाएगा। सर। अभी ऐड हो जाएगा। एक्चुअली द न्यू वर्जन ऑफ हाँ। द थिंग हैज कम। अभी ऐड हो जाएगा सर। Just please wait and have patience, sir. Coming. Actually, it comes share screen. It's share screen. Vinay is available, sir. Vinay Shukla is available. 1 minute. It comes as some new version has come. That's why facing some problem. स्क्रीन शेयर। यदि स्क्रीन शेयर नहीं हो पाता है तो आप उसको चुपचाप मतलब उसको पढ़ दीजिए और स्कॉलर्स विल अंडरस्टैंड। ऐसा कोई नहीं है, नो नीड ऑफ वेस्टिंग टाइम। बस 1 मिनट। हाँ, आ गया सर। थिंक दिस वुड बी द यस कम, नो प्रॉब्लम सर, आ गया। इट इज शेयर सर नाउ। अभी हाँ आया, तो आया या नहीं आया? नहीं आया अभी। आ गया? नहीं, आ गया होगा सर, देखिए। नहीं, शेयर हो गया है सर। जोशी हाँ आया आया आ गया आ गया आ गया आ गया जी, आ गया। Yes, please. Let me start. So, 3 category. I spoke on 3 categories. Pure science, with this classification as per my own knowledge, per my own this belief, we can classify broadly in 3. See, people say that the doctors who are coming, or engineers who are coming, or the managers coming, they are not meeting this standard. Their knowledge, their skill is not up to the mark because these colleges has not delivered the right education and right skill. They have not completed the course. Even the students were less interested of getting everything in their mind. So that will be another issue we'll talk about. As per the cancer has worked for a very long time on the quality issues. The only thing is the Reeves and Badner 1994 declared that quality is always
heterogeneous and it has no any universal all encompassing definition. So how to define quality? Quality can be compared but cannot be defined. This is the basic thing, that quality cannot be defined, inclusive everything. It can be compared only. This student or this doctor is better than that doctor only. But we cannot say that 100 kilogram is better or 2 gram is better, 2 meters is better, 2 miles is better. We don't have any basic scientific unit of measurement. All right, जी. One hotel is good, other hotel is better, we can compare, but we don't have any measurement tool that we can exactly measure in centimeter or anything. So satisfaction and quality cannot be measured, it can be compared only. This major statement has come. Similarly, one of the very known figures, Juran and Trasberg, they have also said equality means conformance of to requirement. I mean, what we need and that should be completed is quality. The very famous name, Madam Jitmal is there. She has also said on the marketing area that customer-centric approach to define quality and postulate quality as customer's judgment for an entity overall excellence and superiority. Service characteristics and service quality are correlated terms. Service quality has bearing on satisfaction, loyalty, and behavioral intention. This is Madam Jitmal's part, and the team of Parasuraman, Jitmal, and Berry in 1985 they developed one basic structure for measuring the quality and performance that is called SERVQUAL for the services. Similarly, in 2001, two scholars they also gave their own idea, Robertson and Brady. Satisfaction as a function of service experience, the cognitive versus affective prediction of the service experience, direct customer satisfaction. So the practitioner, academician, they use quality, satisfaction interchangeably. So quality means satisfaction, satisfaction means quality. It is the common phenomena that we understand the service was a quality service, the doctor is a quality doctor, the engineer is a quality doctor, the professor is a quality professor. This idea comes. But later on, the service, whether it is the hospital services, hotel services, educational services, which are being delivered by a person to the clients, to the customers, the customer have no any criteria to measure. So here today, we'll be trying to explain that how many skills were developed by passing of times right from 1985 to 2020, 22 or 25. We'll be taking a cursory notice that how people, how scholars develop some model, and still there is no unified model that can gauge, that can calculate, that can measure the performance of the services or can give the mark to the quality. So we'll be discussing these things. A number of people work here around. So these are certain definitions, certain part, but let us proceed further. We feel satisfaction when we purchase any product or any service and find that it matched the expectation, what I have thought that I got, what I paid that I got. This part. Suppose the IIMs are taking 13 to 18 lakh rupee for the postgraduate degree in management. The students feel that they have paid and they have got. But at the same time, the other institution, they are also providing the same qualification degree and paper, but the situation is far different, and this kind of the non-satisfaction or not conformance or no
value of the money is frustration. So particularly is राम कोमल जी, आपका स्क्रीन पे वो नहीं आ रहा है, स्क्रीन मूव नहीं कर रहा है, मीन्स ओनली वन द स्लाइड इज देयर, दैट इज नॉट मूविंग। अब देखिए, अब चल रहा है क्या? नहीं सर चल रहा है। कोमल जी का विंडो तो शेयर हो गया, पीपीटी को शेयर करें सर। हाँ, विनय शुक्ला जी बोल रहे हैं। नहीं, हाँ तो सर जी, मीना जी हाँ। शेयर हो रहा है ना, देखिए मॉडल्स में आए हैं हम। तो सर वो पीपीटी शेयर कीजिए, पीपीटी पे क्लिक कीजिए सर, जहाँ पर आपका जिस उस पे हो। नहीं, अभी तो हमने पीपीटी ही शेयर किया हुआ था, फिर से अब देख लें जरा। नहीं वो PPT आपका विंडो वर्जन होगा तो थोड़ा देर से थोड़ा प्रोसेस किया होगा, इस वजह से देर से शेयर हुआ होगा, लेकिन दोबारा आप कोशिश करें एक बार। एक्चुअली आज ही इसने अपडेट किया हुआ, सम अदर वर्जन हैज कम, तो शेयरिंग में तो यहीं से आया शुक्ला जी। अब मैं एक बार फिर से स्टॉप शेयरिंग करके फिर से शेयर करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी हाँ, हो रहा है सर, गुड। शेयर हुआ सर? हाँ, मतलब स्टार्ट हुआ, आगे चलाइए। आया Is तो it okay? अब रुक गया ये है। to avoiding in infinity mirror, don't share your entire screen, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है। और नहीं, ब्राउजर आ गया सर, मेरे में बिल्कुल शेयरिंग दिखा रहा है, फुल स्क्रीन। अच्छा, शाइकात बाशु फ्रॉम कनाडा, he has also joined। राम कोमल जी, शाइकात बाशु जी, he is a great scholar, he is a research director in Canada, he has joined। Warm Welcome, sir। welcome, Shaikat Bashuji, welcome। Thank you. Welcome, sir। So let us continue. After this, my presentation will be discussing. See, this part in all kind of services, whether educational or any other service like banking, hotel, insurance, laundry, vehicle, whatever. So initially in 1985, the Parasuraman Jeethman Berry, Parasuraman et al., you see the author name, they developed a model called Circle, and they put the construct like reliability, assurance, tangibility, empathy, responsiveness. These were the constructs, and they conducted a study in across different industry, offering services to the people and getting their payments. So actually they were selling their services. So I said ki how to measure ki whether the service is good or bad, how much good or bad. So we don't have any scale to measure. This is the main point of today's discussion. सर्विस में अभी तक कोई ऐसा स्केल इंक्लूसिव नहीं बन पाया जो अक्रॉस सर्विस सेक्टर यूज कर सके, एंड द बायर कैन गेज इट, कैन क्वांटिफाई और कैन हैव सम degree of the numeral things. Means we cannot say the 1 kg is higher than x and y. कोई चीज 1 किलो ज्यादा नहीं है। वेट के लिए तो मेजरमेंट है, सर्विस के लिए मेजरमेंट नहीं है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो 85 में फर्स्ट टाइम दी परशुरामन जीतमन बेरी ने इस चीज को बहुत सोचा, बहुत समझा, एंड दे गेव वन मॉडल कॉल्ड सर्कल कि सर्विस क्वालिटी को आप इस 5 पैरामीटर पे गेज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, टैंजिबिलिटी, एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। और ये बेस मॉडल रहा। इस बेस मॉडल का बहुत अप्रिसिएशन हुआ, एंड सर्टेन पीपल लाइक क्रॉनिंग एंड टेलर, इन दोनों ने मिलकर के कहा कि नहीं, आपका जो क्वालिटी मॉडल है उसमें देयर आर सर्टेन डिफेक्ट्स एंड दे आर नॉट रीचिंग टू द ऑल डायमेंशंस। सो
Cronin and Taylor developed their own model in 1992, published, accepted. Service quality performance model is called SERPERF. इसमें उन्होंने वही चीजें रखी लेकिन थोड़ी अलग तरीके से, परसेप्शन सोच के रखा। सर्कल में है कि एक्सपेक्टेशन क्या है आपका, परसेप्शन क्या है। मीनिंग डॉक्टर के पास गए, एक्सपेक्टेशन है कि इतना फीस दे रहे हैं, इतना होगा, लेकिन जब सर्विस ले लिए तो जो आप परसीव किए, यू परसीव लेस देन योर एक्सपेक्टेशन और यू परसीव हायर देन योर एक्सपेक्टेशन। तो इस पर सर्कल का मॉडल रहा। हमें लगता है सभी लोगों को पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। सर्कल का मॉडल रहा कि नहीं, जो परसीव हो रहा, व्हाट वी गेट आफ्टर द पेमेंट, उस पर ही गेज किया जाए, उस पर भी मेजर किया जाए। ये क्रॉनिन टेलर ने कहा और इन दोनों को मिला करके एक सर्विस क्वालिटी मॉडल चल पड़ी। सर्विसेज सेक्टर में ऑल काइंड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, डिलीवरी सर्विसेज, सब पर, एविएशन सर्विसेज, इन सब पे आ गया यही बात। 93 में टीज एटॉल करके हैं, इन लोगों ने फिर से रिवाइज किया और अपने मॉडल का नाम दिया इवैल्यूएटेड परफॉर्मेंस मॉडल। इन्होंने सेम वर्ड्स को इस्तेमाल किया लेकिन उनके आइटम्स बदल दिए। फिर अगले इसी के साथ में 96 तक एक और लोग आए, इन्हीं के ग्रुप ने दूसरा पेपर निकाला, नॉन क्वालिटी मॉडल। इस इनका एक मॉडल आया, इन्होंने इस तरह से दिया कि कॉम्पिटेंस, एटीट्यूड, कंटेंट, डिलीवरी एंड रिलायबिलिटी। इन मैडम से इंटरेक्शन भी मेरा हुआ और जब हमारा स्टडी चल रहा था तो इन्होंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसी चीजें जो नहीं होनी चाहिए उसको उन्हें इंडिकेट किया कि इसको ऐसे करिए। उसके बाद 1996 में एक मॉडल आया जिसको हम लोग हॉटमैक्स कहते हैं, हो एंड बीन। इन्होंने कुछ और चीजें बढ़ा दी और उन सारी चीजों को बढ़ाने के साथ साथ बहुत सारा चीजें इन्होंने जोड़ा और कहा नहीं, इसको हम हायर एजुकेशन टोटल क्वालिटी मॉडल मानेंगे। उसके बाद फिरदौस अब्दुल्ला करके हैं, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मलेशिया, ही डेवलप हिज मॉडल, उसको कहा गया है हेड पर्फ, जो 2006 में आया। 2006 के बाद कोई मॉडल नहीं आया। 2017 में हम लोगों का मॉडल पब्लिश हुआ, मेरा मॉडल पब्लिश हुआ, आर.के. प्रसाद एंड संजीव वर्मा इज माय सुपरवाइजर ऑफ पीएचडी। तो 2017 में ये मॉडल पब्लिश हुआ और इस मॉडल का नाम है मीक्वल मॉडल फॉर measuring the quality and performance of services, particularly the educational services। और इस मॉडल को पेटेंट मिला। तो मीनिंग देयर बाई ये कहने की चीज है कि जितना भी प्रोफेशनल एजुकेशन है उसके मेजरमेंट का अभी भी कोई यूनिफाइड मॉडल नहीं है। और चूंकि हेट्रोजीनियस होता है सर्विस, चाहे वो किसी की सर्विस हो, मे बी अ बार्बर सर्विस, maybe a laundry person service, to the certain other thing like aviation services, तो यूनिफाइड बनाना मुश्किल हुआ। तो सेक्टर वाइज
क्वालिटी मेजर्स लोगों ने बनाए और उस सेक्टर वाइज क्वालिटी मेजर्स की वजह से इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, वैल्यू फॉर मनी, सेटिस्फैक्शन एंड क्वालिटी, इतनी सारी चीजों की बात हुई और मैनेजरियल इम्प्लीकेशन में ये सारी चीजें बहुत उभर करके आई। सबसे जो लेटेस्ट आया 2022 का, इसमें इन्होंने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए एक स्केल डेवलप किया। इसका स्केल का नाम दिया इन्होंने TRFQ, और TRFQ को ये जो पार्ट बना, ये ट्रांसफॉर्मेटिव क्वालिटी, ये शब्द है, ट्रांसफॉर्मेटिव क्वालिटी को TRFQ लिखा। सर्टेन ऑथर, वन in 3 Indian and 1 the person outside India, I think is Cyprus, and other Indians are working in different countries, or they are Indian origin. So the Sirat Kaur Gill, Amandeep Dheer, Guru Prakash Singh and Damitis Warnitz, इन लोगों का 22 में एक पेपर आया जनरल ऑफ बिजनेस रिसर्च के लिए जो अल्जेवियर का है। इन्होंने उस चीज को बिल्कुल बदल दिया और नए थॉट लेके आए, नया प्लेटफॉर्म लेके आए। इनके जो पैरामीटर है वो इस तरह से है, इसको कहते हैं इनके इमोशनल स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ट्रांसडेंटिंग प्रेजुडिसेस एंड एक्विजिशन एंड एनहांसमेंट ऑफ स्किल, नॉलेज, एबिलिटीज। तो जितना भी हो रहा है चीजें वो ऐसे ही बढ़ती जा रहे हैं, धीरे धीरे एक एक पार्ट आता जा रहा है। जो हमारा स्किल रहा वो इंटीग्रेटेड सर्विस क्वालिटी आया था 2017 में, और उसके हमने मेजर करने की कोशिश की थी सारे डायमेंशन को। जो हमारे पैरामीटर रहे वो रहे एकेडमिक एस्पेक्ट्स, बिहेवियरल रिस्पांस एंड सपोर्ट, प्रोफेशनल एश्योरेंस, नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट्स, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरैक्शन एंड फिजिकल एविडेंस। इन पर इसको एमरल्ड के बहुत प्रतिष्ठित जर्नल ने इसको पब्लिश किया और इसके लिए उन्होंने हमें मोटिवेट किया, यू गो फॉर द पेटेंटिंग। तो हम पेटेंटिंग में गए और हमारे आइटम्स इतने रहे और इस तरह से हमने इस वर्क को कंप्लीट किया। आज हम इस पर ठीक से बता रहे हैं। अब हम थोड़ा डिस्कशन आप लोगों से करेंगे कि ये मॉडल कैसा रहा और किस तरह से रहा, और खास तौर से जो हमारा मीक्वल मॉडल है आप खोजेंगे तो मिलेगा, तो उस पर कमेंट हम चाह रहे हैं। इसके बाद हमने एक और दूसरा पेटेंट कराया है, सर्विस डिलीवरी मॉडल। इसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 40 जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, चीफ मेडिकल ऑफिसर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, इन सबको हमने लिया। लगभग 1200 रिस्पोंडेंट आए और लगभग 800 लोग सर्विस रेसिपिएंट आए, यानी सर्विस डिलीवरी पर्सन और सर्विस रेसिपिएंट। उस पर जो हमारा मॉडल आया वो भी पेटेंट हुआ और वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो फॉर टुडे डिस्कशन जो हम समराइज कर रहे हैं, अभी सर को कहेंगे कि 3 कैटेगरी में हमने कैटेगराइज किया। Natural sciences, physical sciences, one category, where things are conceptualized and scientists give some outcome in the method of some formula development or some concept or some theory. दूसरा आया engineering. Engineering people take the formula concepts of the scientists, convert into the physical assets and make it commercialized. और तीसरा आया ह्यूमैनिटी, जिसमें हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। इट इज अ काइंड ऑफ डिलीवरी साइंसेस, और ये डिलीवर करता है इन दोनों के कामों को, साइंटिस्ट के और इंजीनियर के कामों को डिलीवर करता है पीपल के लिए और उसका पूरा मेंटेनेंस देखता है। तो ये तीनों कैटेगराइजेशन मिल करके हमारे पूरे सेक्टर को चलाते हैं। तो आज हम इसी पर ज्यादा बात किए और हम चाहेंगे कि सर से कि इस पर अपने अपने सभी लोग अपने कमेंट दें। बहुत अच्छा, बहुत डीप में आपने बताया। और
हर क्षेत्र में क्या क्या हम लोगों ने एजुकेशन क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए और कैसे कैसे क्रमशः विकास हुआ, ये सब आपने डिटेल में बताया। एक प्रश्न आता है कि क्या ये सर्विस ओरिएंटेड, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, डॉक्टर बन गए, उन लोग को तो जॉब मिल गया, और जो पूरा नहीं कर पाते या जो उन लोगों के लिए मतलब बीच में जो छोड़ देते हैं, उन लोगों के लिए क्या बीच में अपने क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाने का कोई प्लान आप लोगों ने किया था? नंबर 1। नंबर 2, आजकल जो डिफेंस का जो सिस्टम है, आजकल जो कंट्री को खतरा हो रहा है, जैसे चाइना में मिलिट्री ट्रेनिंग सब बच्चों को शुरू से ही दिया जाना शुरू कर दिया गया है। आजकल जो आतंकवादी और ये सब हो रहा है, पकड़ के बस 28 आदमी को खड़ा करके गोली मार दिए। इससे बचने के लिए भी क्या हम लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, पढ़ाने की जरूरत है? क्योंकि हर आदमी को स्ट्रांग बनाना जरूरी है, वेपन चलाना सिखाना जरूरी है। Ranga Rao Saab, you had given so many suggestions when you have seen our this pamphlet in webinar. You can also suggest what additional qualifications is needed for survival. Survival. तो इन सब विषयों पर विचार किया जा रहा है कि नहीं? आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बस घर में बैठ करके बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के हम बैठे हुए, तो वी आर नॉट सेफ ऑल्सो। तो इस संबंध में ये दो विषय में आप लोगों ने क्या सोचा है? बिकॉज यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्लानर ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, और क्वालिटी एजुकेशन में इन लोगों को जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? Shall I explain, sir, something? Yes, sir. Yes, sir. See, the Niti Aayog published its report in February 25. Yes. This is a very recent report. Yeah. And it is totally focusing on education sector. Yeah. One basic report. And there is comments that really we have deteriorated our quality in delivering the quality education. Yes. उन्होंने कहा categorically कि every state has shut down almost 10-15 colleges per year. Those who are into the engineering and management, particularly the private. The Niti Aayog report has compared the private and public institution offering this kind of प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। उसमें ये उनका बताया है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन डिड नॉट मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द गवर्नमेंट, और अतः उनके लिए एक समस्या रही, बिकॉज दे मेड इट अ प्रॉफिट अर्निंग एंटिटी। द प्राइवेट इन्वेस्टर थॉट इट लाइक प्रॉफिट अर्निंग एंटिटी, और कंपेयर किया है पब्लिक से। और ये भी बताया है कि पब्लिक की प्रॉब्लम क्या है, ब्यूरोक्रेसी, डिले एंड अदर थिंग। वो पूरी रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें आई हैं। एनईपी के जरिए जो मॉडल आया कि इसको और क्वालिटी बनाया जाए, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड किया जाए, उसके भी बहुत सारे चीजें रही, और उस एनईपी मॉडल को उन्होंने थोड़ा प्रेज किया है। दूसरा ये कहा है, एक और उनका एक स्टडी है, उसमें देखा गया है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन से लोग माइग्रेट होकर के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के जा रहे हैं हायर एजुकेशन, जबकि सीन उल्टी थी। प्राइमरी या जूनियर एजुकेशन प्राइवेट में लोग करते थे, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट में जाना पसंद करते हैं। कोई भी आदमी अपने बच्चे को सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहता है, लेकिन अपने बच्चे का इंजीनियरिंग सरकारी आईआईटी से कराना चाहता है। एक बिल्कुल अपोजिट पार्ट है ये। At the one side, you are not willing to invest or get the services of the government institution at lower level, but higher level you are willing. तो ये भी, इसका भी एक प्रॉब्लम आया। बहुत सारी बातें आई कि कैसे इन चीज को हैंडल किया जाए, और क्या इसका कोई मानक रखा जाए कि मशरूमिंग ना हो। उसके लिए एक अलग है कि यूएसएसआर में, चाइना में
पर लाख पॉपुलेशन पे कितने कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, उनके यहाँ अवेलेबिलिटी कराने की वजह से उनके पर लाख पॉपुलेशन पे बहुत सारे डॉक्टर हैं, और इसीलिए चाइना में, रशिया में एमबीबीएस डिग्री, एमडी डिग्री की बहुत बोलबाला हो गया, एंड चीपर इवन, तो दे हैव नॉट डिलीवर्ड दी क्वालिटी एजुकेशन। भारतीय लोग जो जाते हैं वहाँ चाइना में एमबीबीएस करने, यूक्रेन जाते हैं, बेलारूस जाते हैं, चेचनिया जाते हैं, और जब वो आते हैं तो भारत की एमसीआई कहती है नहीं, आपको प्रैक्टिस अथॉरिटी नहीं देंगे अंटिल अनलेस यू प्रूव, तो एग्जिट एग्जाम्स यहाँ देना पड़ रहा है। सिमिलरली हमारे फार्मेसी में सारे प्राइवेट कॉलेजेस को, पॉलिटेक्निक के सारे प्राइवेट कॉलेजेस को सरकार ने कहा तब तक आपको डिग्री नहीं मिलेगी जब तक आप अपने बच्चों का एग्जिट एग्जामिनेशन नहीं पास कराएंगे। सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन छूटे हुए हैं, तो 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी, 4 ईयर बैचलर इन फार्मेसी, उनको एग्जिट एग्जाम देना पड़ रहा है जस्ट टू मेंटेन, तभी वो, या जो विदेश का, नेपाल का डिग्री लेके आ रहा है, श्रीलंका का डिग्री लेके आ रहा है, इवन आई नो सर्टेन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान दे हैव कम विद द डिग्री एमबीबीएस, तो इनकी वैलिडिटी तभी दी जा रही है जब वो यहाँ का एमसीआई का स्टैंडर्ड पास करें। तो ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं आपने ज्यादा खोल दिया। प्रॉब्लम यह है कि पॉपुलेशन के हिसाब से वास्तव में हम लोग कम हैं, कंपेयर करें रशिया से, चाइना से, वास्तव हमारे पास कम यूनिवर्सिटी है, कम इंस्टीट्यूशन है। लेकिन यही चीज है कि हर व्यक्ति कम से कम एजुकेटेड हो, उसके पास कुछ ना कुछ एंटरप्राइज होगा, इस सोच करके इतनी बड़ी मशरूमिंग की गई। और अब तो यूपी में या किसी जगह पे 3P मॉडल पर सारे मेडिकल कॉलेजेस आ जा रहे हैं, और ऐसे मेडिकल कॉलेज में दे डोंट हैव इवन प्रोफेसर, डेमोन्स्ट्रेटर उनको पूरा एमबीबीएस करा दे रहा है। सर ये सारी चीजें सोचने की चीज हैं। और सर एक चीज और पूछना चाहेंगे कि अभी जो हम लोगों के इंडियन स्टूडेंट्स का क्वालिटी है वो पिछले 10 बरस की तुलना में घटा है या बढ़ा है? और डिटोरेशन हुआ है सर, डिटोरेशन हुआ, सारी रिपोर्ट करते हैं डिटोरेशन हुआ है, डिटोरेशन हुआ है। और वर्ल्ड के एजुकेशन क्वालिटी स्टैंडर्ड से अपना क्वालिटी स्टैंडर्ड कितना कम है? इट्स टू लो, और ये भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारे भारतीय लोग हैं, ये अगर वो क्वालिटी स्टूडेंट है तो इनको अगर उसकी फंडिंग हुई, पैसा है, तो इमीडिएट भेज देते हैं यूएस के उन टॉप इंस्टीट्यूशन में, प्रिंसटन भेज देंगे, कार्नेल भेज देंगे, और लंदन की तरफ भेज देंगे, मैसेचुसेट्स MIT भेज देंगे। तो वो हमारा जो बेसिक क्वालिटी जो अच्छा हो सकता था वो तो वहां चला गया। और दूसरा, जो बच्चा यहाँ एमबीबीएस या इंजीनियरिंग या एमबीए का एंट्रेंस नहीं पास कर पाता है, वो सीधे जाकर कनाडा में एडमिशन ले लेता है और वो वहां से डिग्री हासिल कर लेता है। यानी कोई बच्चा अगर बीटेक में आईआईटी में मिलेगा तो शायद ही वो कनाडा न जाए, शायद वो यूएसए न जाए, लेकिन ये लो क्वालिटी के लोग यूएसए जाकर के हाई क्वालिटी अपने आप को साबित कर देते हैं। ये भी एक कंट्रोवर्सी देखें, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन समस्या यही रही कि 21st सेंचुरी की चेंजिंग सेंचुरी, यहाँ पर अब आएगा कुल मिला करके मैक्सिमम जो फोकस अब से पलट करके साइंस इंजीनियरिंग पे आएगा। बीच में मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स का बहुत बोलबाला रहा, क्योंकि डिलीवरी के रूप में ये दोनों साइंसेस, ह्यूमैनिटीज की साइंसेस बहुत ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिए। और अभी क्या स्थिति है, अब एम्प्लॉयमेंट देगा खाली इंजीनियरिंग एंड साइंस, ये डिलीवरी साइंसेस को कम हो जाएगा, इनका रोल भी कम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं सर, प्लीज कमेंट। हाँ, ठीक है। जोशी जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? जोशी जी, जोशी जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा अभी रामकुमार प्रसाद जी ने बताया, और किस तरह से हमारे विद्यालय, हमारे जो हायर एजुकेशन है वो डिटोरेट कर रही है, और किस तरह से इसको समावेशी बनाया जाए, इसको हायर लेवल पर चलाया जाए। और रामकुमार प्रसाद जी ने तो स्वयं भी बड़ा संघर्ष किया है। और ये थोड़ा अलग हटके मैं यहाँ पे कहूँगा कि आपकी बेटी ऐश्वर्या प्रजापति ने 2023 की
आईएएस परीक्षा में 10वां स्थान प्राप्त किया और मुझे बाद में ही पता चला कि उसको इस लेवल तक पहुंचाने में आपका बड़ा योगदान रहा। तो किस तरह से क्वालिटी एजुकेशन हम दें, आज का जो भाषण है वो ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है जो उत्तर प्रदेश के अंदर मैनेजमेंट विषय का पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज में हेड है और जिसने स्वयं अपनी बच्ची को इतना योग्य बनाया कि जो आईएएस परीक्षा जो विश्व की कहते हैं कि सर्वोत्तम कठिन परीक्षा है, उसमें आपकी बेटी ने स्थान प्राप्त करा है। तो आपके विचारों से मैं बहुत प्रभावित रहा हूँ और आज आपने जो बताया ये सभी के लिए उपयोगी है, जो एजुकेशन में काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रोफेसर्स हैं, चाहे वो एजुकेशन में पीएचडी, एजुकेशन क्षेत्र में पीएचडीज कर रहे हैं और स्कॉलर्स हैं और कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। मैं भी जो है सीबीएसई के जो प्रिंसिपल्स की वाइस प्रिंसिपल का एक कार्यक्रम है, इसके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के हिसाब से मुझे आमंत्रित किया जाता है और मैंने वहाँ पे जो उच्च लेवल के वक्ता थे उनसे सुना कि हम अगर इस तरह से लें कि छात्र केंद्रित शिक्षा दृष्टिकोण रहे और तकनीकी एकीकरण हो, शिक्षकों की क्षमता वृद्धि की जाए, निरंतर मूल्यांकन और पारदर्शिता जैसे नैक है, एनआईआरएफ है, ऐसे निकायों के माध्यम से संस्थानों का मूल्यांकन हो और रैंकिंग सही तरीके से हो, तो डेफिनेटली ये शिक्षा में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करेंगे। और समावेशिता और समान अवसर, ये मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के छात्रों को हम कैसे करें कि उनको छात्रवृत्ति मिले, बेहतर संसाधन उपलब्ध कराएं और क्षेत्रीय भाषा में सामग्री उपलब्ध करा के उनको अधिक अवसर प्रदान करा सकते हैं। देखिए, जैसे कि कहते हैं कि विश्व में इंग्लिश से ही काम चलता है, ऐसा नहीं है। चाहे रशियंस हैं, स्पेन में है, चाइना में है, चाइना की यूनिवर्सिटी विश्व के अच्छी यूनिवर्सिटीज में है, लेकिन वो कॉमर्शियल लेवल पे वो क्वालिटी नहीं उपलब्ध कराते हैं बाहर वालों को, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका फायदा वो अन्य लोग ले लेंगे। तो चाइना के बारे को छोड़ दीजिए, बाकी अगर हम भाषा ऐसी करें कि हमारे जो अधिकांश छात्र छात्राएं हैं उनको अगर हम हिंदी मीडियम में ही इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा दें, तो भाषा तो कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है, जो इंटेलिजेंस है, जो क्वालिटी लाती है, वो अलग चीज है। तो हम अपने इन हायर एजुकेशन के सब्जेक्ट्स को हिंदी में करें, लेकिन इसको इस युग में इसको जो ज्ञान उनको मिलना है वो हिंदी भाषा या वर्नाकुलर जो उनकी लोकल लैंग्वेजेस है उसमें मिले, तभी हम इसमें दक्षता ले पाएंगे। दूसरी ये बात है कि करप्शन, अब आप देखिए कि कितने फेक सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, कितने फेक जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में फेक डिग्री देके जब ये लोग शिक्षा को देंगे तो इनसे क्या एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है। दूसरे, नकल बिल्कुल रोकी जाए। पहले जब हम लोग एजुकेशन में थे तो पोस्ट ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन में या सेकेंडरी लेवल पे भी जो रिजल्ट जाता था वो 30% होता था, तो जबरदस्ती उसको 97-98% क्यों किया जाए। जो जिस लायक है उस लायक रखा जाए। तो अगर हम इस तरह जो इवैल्यूएशन है एजुकेशन का, वो भी एक अच्छे एक स्टैंडर्ड मानदंडों के थ्रू हो, तभी हम जो है क्वालिटी एजुकेशन में सुधार कर पाएंगे। तो और शिक्षकों को जो है उनकी क्षमता वृद्धि करना चाहिए। अब जहाँ तक मुझे ख्याल है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के जो शिक्षक हैं उनको तो किस तरह शिक्षा प्रदान कराई जाए, उसके लिए बीएड है या बीटीसी और एलटी कई तरह के कोर्सेज हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में ऐसे कोई कोर्सेज नहीं है। यहाँ पर भी आवश्यकता है कि हाउ टू टीच, इस पे भी कोई कोर्स चलाए जाए और दूसरे जो हम रिक्रूट करते हैं टीचर्स, उनके ज्ञान में वृद्धि के लिए हम ऐसे बीच बीच में रीओरिएंटेशन कोर्स चलाएं
और वो देखें कि वो कोर्सेज को पास करते हैं, और साथ ही साथ उनको कोर्स पास करने के बाद कुछ मोटिवेशन दी जाए, कुछ इंक्रीमेंट दें, कुछ स्पेशल रिकॉग्निशन दें, ताकि उनको उनका वो भी उत्साहवर्धक रहे और मोटिवेटेड रहे। तभी हम क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे। राम कोमल प्रसाद जी, डॉक्टर राम कोमल प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा अब आज बताया कि किस प्रकार हम आपने स्वयं क्वालिटी एजुकेशन के क्षेत्र में काम किया, और आपने विभिन्न कॉलेज में, दिल्ली में स्टडी की है, बॉम्बे में स्टडी की है, लखनऊ विश्वविद्यालय में स्टडी की है, और गोरखपुर में स्टडी की है। तो आप स्वयं इस बात को जानते हैं सर कि क्वालिटी एजुकेशन जो है, जो उसका स्टैंडर्ड है, वो शहर की कौन सी कैटेगरी, इस पे भी डिपेंड करता है। तो आपने जो आज वार्ता दी वो रियली सभी के लिए उपयोगी है। और सर आपने इतना संघर्ष किया है, और हर लेवल पे आज भी आप संघर्ष कर रहे हैं। मैंने आपके बारे में सुना कि आपने जो एक हमारे यूपी के पूर्व में मुख्य सचिव थे, उनको भी पीएचडी कराई है, तो आपको बहुत अनुभव है। जी सर, वो जी हाँ, वो चीफ सेक्रेटरी की पूरी पीएचडी हमने ही कराई है, और जी उस पे मैंने खाली उनके मॉडल को जो पेटेंट कराया वो भी हमें नहीं कराया, वो हमारे ही नाम से है। धन्यवाद हमने धन्यवाद 2 सर। आईएएस जी अफसरों की कराई सर, 2 अच्छा, आईएएस अफसरों की कराई, और दे वेयर गुड, जी हाँ, और 2 आईएएस अफसर अभी लाइन में हैं। अच्छा अच्छा, बट वही है, मैं किसी छोड़ता तो किसी को नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। आपके गाँव में स्टूडेंट्स भी आज कहते हैं तक कि हमें सर स्ट्रिक्टली देखते हैं, एक सर स्टैंडर्ड को पास बुलाए, करवाते हैं। और बहुत ही क्वालिटी का सर बस एक इंटरव्यू कराया गया, जी उसमें एक चीज पूछा गया कि कोई ऐसी थियरी बताओ जिसमें किसी भारतीय का नाम हो। टेल अच्छा मी अच्छा, एनी थियरी which has been given by some Indian। जी हाँ, ये जीरो रहा। अच्छा, तो वी हैव शुरू से ग्लोबल विनर्स, लेकिन ये सवाल बड़ा अजीब रखे हुए हैं ना। रहा, और उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्या करोगे, यू हैव कम फॉर द पीएचडी, करोगे क्या? जी नेटवर्क का इश्यू हो रहा है सर। हाँ हाँ हाँ, हम लोग के समय था नहीं, ना, मम्मी लोग बहुत अच्छा आपने राम कोमल प्रसाद जी ने कहा। वही मैं कह रहा हूँ कि सर अगर हम अपने स्टैंडर्ड को नहीं बढ़ाएंगे तो बड़ी भारी समस्या आ जाएगी। केवल क्वांटिटी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, मेन बात है क्वालिटी। जैसे आपने कहा कि नेपाल से, कनाडा से लोग एमबीबीएस करके आ जा रहे हैं और वो एग्जाम पास कर रहे हैं, लेकिन हम ये देखें कि हमारे देश के अगर जो स्टैंडर्ड है वो और ऊंचा अगर उठेगा तो हम हमारी जो पॉपुलेशन है वो हम, जैसे आपने अच्छा ही बात बताई कि आईआईटीज और आईएमएम से स्टूडेंट पास हो रहे हैं, उनको विदेश में चले जा रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, जबकि उनकी एजुकेशन पे भारत सरकार ने पैसा खर्च किया है। हमारे देश के नागरिकों के द्वारा जो इनकम टैक्स दिया जाता है उससे उनकी शिक्षा हुई है, तो उसका लाभ अगर हमारे देश को मिले। अभी ट्रम्प जी ने जब से प्रेसिडेंटशिप एक्वायर की है तो इन्होंने इंडियंस को वहां पे एसेस करने में हर्डल्स डाली, उससे हमारे देश को ही फायदा हुआ। जो लॉर्ड वहां चला जाता वो इस समय कम से कम हमारे देश में रह के हमारे देश के देश की सेवा कर रहा है। तो ये भी हमें देखना होगा कि जो इतने अच्छे विद्यालयों से, अच्छी एजुकेशन लेके लोग जाते हैं, वो ब्रेन ड्रेन ना हो। ठीक है, हम उनको पैसा दें, उनके पर्क्स दें, लेकिन उनकी जो कैपेसिटी है, जो उनकी मतलब नॉलेज है, स्किल है, उसका लाभ देश में मिलेगा तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा। तो और क्वालिटी में कोई कमी ना किया जाए, क्योंकि अगर हम सब 100% क्वांटिटी पे या क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे तो इससे एजुकेशन जो लेंगे वो कुछ कर नहीं पाएंगे। डिग्री लेना ही जरूरी नहीं है, डिग्री का उपयोग बहुत जरूरी है, और उपयोग जब भी पॉसिबल है जब उस लेवल के स्टूडेंट पास आउट हो। थैंक यू राम प्रसाद साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा भाषण था। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसी क्षेत्र
इसी सब्जेक्ट पे आप अमिताभ इसमें अब की रिसर्च अब करेंगे, की आप सर सबको पुनः जोशी सर, अब की बात हाँ, मैं थैंक कोऑपरेटिव यू। सेक्टर को लेना चाह रहा हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है कोऑपरेटिव, पूरे यूपी बिहार में डैमेज हो गया है। जी क्योंकि मैं उस एरिया में काम भी कर रहा हूँ, रिसर्च 2 पब्लिश भी हो गए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें बहुत सारे काम दिए हैं ये इस कोऑपरेटिव को सही करने के लिए। और एक और रह गया है, एक स्टेट एंड सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने काम दिया था, हम कर नहीं पाए। उनका जो सीजनल लॉस ग्रेन लॉस है वेयर हाउसिंग की, उसके लिए एक नया फार्मूला डेवलप करना, नया सिमुलेशन अलजेब्रिक फार्मूला लाना है। अभी तक हम अंग्रेजों के फार्मूले को फॉलो करते हैं और हमारे यहाँ के जितने भी इंजीनियर सुपरवाइजर हैं दे आर फेसिंग बिग थिंग, क्योंकि जो लॉस होता है या गेन होता है तो उन पे चोरी का इल्जाम लग जाता है कि अगर मान लिया जाए कि 1000 मीट्रिक तक वेयर हाउस हुआ और जब निकाला जा रहा है तो पर क्विंटल पे हाफ केजी 1 केजी लॉस चला जाता है और ये मानने को तैयार नहीं होते हैं। किसी सीजन में गेन भी होता है। अगर 100 केजी का व्हीट है तो हो सकता है 100 केजी से 500 ग्राम बढ़ जाए और वो लॉट में जाता है। तो इसकी एक फार्मूला भारतीयों द्वारा किया जाना कि एक काम, दूसरा कोऑपरेटिव सेक्टर को रीमॉडल करना। तो अगली टास्क अगर आप लोग लगाए तो कोऑपरेटिव सेक्टर पे कुछ बात किया जाए और कैसे कोऑपरेटिव फाइनेंसिंग डक्टेल मॉडल से लेकर के रूरल हाउस होल्ड और एम्प्लॉयबिलिटी और जो चीजें हैं, मैं इस वक्त पूरे ड्रोन दीदी यानी कि ड्रोन प्रशिक्षण भी हमारे ही जिम्मे है, हमारे मिनिस्टर ने दे रखा है। तो हम लोगों ने पिछली बार लगभग 244 महिलाओं को 15 दिन की ट्रेनिंग दी, अब उनको ड्रोन डिलीवर करेंगे, अगला बैच करेंगे। तो इस पर कुछ चीजें होनी चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट पे। अगर मुझे समय मिलेगा हाँ, और आप लोग इनवाइट करते, अगली बार हम लोग कोऑपरेटिव बिजनेस मैनेजमेंट पे बात करें। बहुत अच्छा जरूर सर, ये करेंगे। और वास्तव एक में एक एक जनता से चीज और जुड़े विषय पूछना। हैं। और हाँ, मैं और अमिताभ जी से प्रार्थना करूंगा कि आपको पुनः लाएं। और कोऑपरेटिव देखिए, आप अगर देखा जाए 24 करोड़ की पॉपुलेशन वाला उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां की इन क्षेत्रों को उठाने की आवश्यकता है, और आप जैसे ही विद्वान अपने परिश्रम से, संघर्ष से, अपने ज्ञान से इसको उठा सकते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर प्रसाद एंड डॉक्टर अमिताभ प्रसाद, कि आप सर को लाए और आप बहुत अच्छी रोचक वार्ता दी। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सर। और एक चीज पूछेंगे, अभी राम कोमल साहब ने बताया कि कोई इंडियन आदमी का नाम बताओ थ्योरी में। अरे सर, हमारे यहाँ तो डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने प्लांट हैज लाइफ इसको प्रूव किया, यह थ्योरी दिया। वशिष्ठ नारायण जी ने मैथमेटिक्स में किया, आर्यभट्ट ने इतना किया। लेकिन वशिष्ठ नारायण, हमारे यहाँ ऐसा कल्चर, ऐसा करप्शन है कि थोड़ा सा उगता हुआ प्रकाश, थोड़ा सा जलता हुआ रोशनी देख लेते हैं तो हमारे कलीग को, हमारे इसको सीने में आग लग जाती कि हमसे आगे बढ़ जाएगा, उसको बढ़ने नहीं देते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, हाँ, उन्होंने, और गोविंद अच्छा खुराना एक साहब चीज का केस एक है। चीज हाँ, एक चीज और बता दें सर, कि उन्होंने जो रिसर्च किया अपने यहाँ से, हिंदुस्तान से सब लोगों से पैसा उधार लेके अमेरिका में गए। यहाँ लोग हंसी उड़ाते हैं, टैलेंट का मजाक उड़ाते हैं, और जरा देख लेते हैं तो उसको तरह तरह से लंगी मारते कि आदमी आगे बढ़ नहीं पाए, और थोड़ा सा प्रभाव हो जाता है तो उसको डिमोरलाइज करते हैं, और डिमोरलाइज करके उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। ये पता नहीं इंडियन कल्चर में इतना गंदा दोष है, और अपने को बहुत बड़ा धार्मिक और अपने को विद्वान मानते हैं। हमारे यहाँ विद्वानों की कमी नहीं है राम कोमल साहब, और हमारे यहाँ कैसे कैसे लोग, कैसे कैसा चीज, आर्यभट्ट हुए, हरगोविंद खुराना को जब नोबेल प्राइज मिला तो अमेरिका में लिखा था कि अमेरिकन इंडियन साइंटिस्ट हैड गॉट नोबेल प्राइज, और उनसे मिलने गए तो उसके ऑपरेटर अमेरिकन थे, उसने कहा कि इफ आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू विद दिस हरगोविंद कुमारा तो आई फियर आई विल लूज माय सर्विस, क्योंकि हम यदि इंडिया में रहते तो भूखे मर जाते।
ये इंडियन इतने करप्टेड हो गए हैं और मतलब अपने स्वार्थ के लिए मुसलमान को और दुश्मनों को अपना राज देने को तैयार हैं, अपना दुनिया बेचने को तैयार है और अपने आदमी को गला मारते हैं। अरे कितना गंदा समय हो गया है। हमारे इंडियन टैलेंटेड नहीं है क्या? और कितने अच्छे अच्छे आईएएस निकलते हैं हमारे यहाँ, लेकिन उसको दबा दिया जाता है। थोड़ा सा पावर हो जाता है ना तो नहीं बढ़े, ये आगे नहीं बढ़े। इसको सपना देखना छोड़ो, इसके पैर में लंगी मारो, अपने प्रभाव से उसका रास्ता रोक देते हैं। तो टैलेंट की कमी थोड़ी है और सब में एक बढ़िया बढ़िया भावना है। अब वेबनार अमिताभ ग्रुप इसीलिए बनाए हैं कि जिसके अंदर में जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, वो लेके आगे बढ़े और हम चाहते हैं कि उनको आगे बढ़ाएं और ये रोकने वाले को अपनी दुनिया से हटा देना चाहिए। बताइए, हम जान रहे हैं कि कितना बड़ा खतरा हमारे ऊपर आ रहा है और हम अपने टैलेंट को दबा करके और अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं। एक दिन हम लोगों की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो हमको मार के सब खा जाएगा, अभी तो खाली गोली मार रहा है। तो प्रश्न ये है कि हम लोगों में जागरूकता और क्वालिटी एजुकेशन चार्ट के क्या करेंगे जब हमको गोली मार दिया जाएगा, मेरे घर में घुस घुस के सब मारेंगे। तो ये बहुत बड़ा खतरा है और बहुत बड़ा ये है जिसको समझना बहुत जरूरी है। और इस पर भी एजुकेशन में मतलब बहुत बड़ा क्वालिटी बढ़ा के हम लोग क्या करेंगे उसका उपयोग। और हमारे हिंदुस्तानी, ये मोदी खराब क्या कर रहे हैं और उसको कितनी गंदी गंदी गाली लोग दे रहे हैं। और दुनिया का एक महान पुरुष आदमी जो किसी का नुकसान नहीं करता, अपना परिवार नहीं बढ़ावा है, कोई करप्शन नहीं किया और अपना ये दोनों जोगी मोदी मिल करके देश को सुधारने, उसके कितने दुश्मन हो गए हैं। कोई सपोर्ट नहीं करता। एक आईएएस का रिपोर्ट हमने पढ़ा कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तानियों ने ही मारा है। बाहरी लोगों से जितना खतरा नहीं है, ये अंदर के कुत्तों लोगों से खतरा है। हम कुत्ते बोलते हैं उनको जो हिंदुस्तानी होके हिंदुस्तानी का रास्ता रोकते हैं, आपको पढ़ने से रोकते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। और थोड़ा सा समझ में आ जाए कि आपसे आगे बढ़ेंगे तो आपका पैर काट देते हैं। ये बात पर आप क्या बोलना चाहेंगे राम कोमल जी? मैं उत्तेजित हो गया, लेकिन ये सच्चाई है। एक एविडेंस मैं देता हूं सर। एक तो अभी जब हायर एजुकेशन में बात की थी तो हमने एआईसीटी के सहस्त्रबुद्धे साहब को चिट्ठी भी लिखा है। और जोशी सर, थैंक यू जोशी सर, कि टीएनए हमने अपना रिपोर्ट उसी बनाया था। हमने प्रमुख सचिव टेक्निकल एजुकेशन और चेयरमैन यूजीसी और चेयरमैन एआईसीटी को लिखा है कि जो हायर एजुकेशन में पीएचडी के बाद आदमी आ रहा है या नेट और जेआरएफ के बाद आदमी आ रहा है, एटलीस्ट 1 ईयर का कंप्लीट एफडीपी उन्हें कंपलसरी कर दिया जाए। क्योंकि अभी सर ने कहा कि बीएड बीटीसी तो है, लेकिन हायर एजुकेशन में कोई सर्टिफिकेशन तो है नहीं। ये कह दिया गया पीएचडी पूरा कर लो, हुक क्रुक वाले भी आ जाते हैं। तो एक तो ये कहा गया। दूसरा भी आपने कहा सर कि आई मेट अ पर्सन, ऐसे ही बहुत सामान्य भेष में मिले वो मिस्टर कालरा, डॉक्टर कालरा। तो हमने पूछा आप क्या करते हैं, तो हंस रहे थे बहुत देर तक। हमने कहा फिर कहाँ से आप रिटायर हुए, तब भी हंसने लगे। तब जब बहुत हमने कुरेदा कई दिनों के बाद, तो बोले कि आई एम अ साइंटिस्ट बट आई कुडंट सर्व माय कंट्री। यस। तो हमने कहा क्यों? कहा एक अदना सा 12वीं पास क्लर्क हमें एक ऑपरेटर्स के लिए 1 साल घुमा देता है, एक केमिकल के लिए मुझे घुमा देता है, एक मशीन के लिए घुमा देता है, तो मैं क्या करूं? बिल्कुल। I couldn't serve my country and I was hugely paid as a scientist grade 1, लेकिन मैं कोई खास काम देश के लिए नहीं कर सका और इसका सारा क्रेडिट ब्यूरोक्रेसी क्लर्कल स्टाफ को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जोशी जी जानते हैं हमने कितना संघर्ष किया बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और हमने बढ़ाया। हम इन कुत्तों से डरे नहीं और हम लड़ते रहे, आगे बढ़ाते रहे और रोकने वालों को हम कमेंट करते रहे, उसको कभी भी अपने सामने नहीं आने दिया। तो ये जो डिमोरलाइजिंग और लेग पुलिंग वाला सिस्टम है उसको बंद, जैसे आपने कहा कि अच्छा जब हम यहाँ पे इतना डिमोरलाइज, जब हम बैंकॉक गए वहां पे हमको बेस्ट स्पीकर का ऑनर दिया गया, तब मुझे समझ में आया कि मेरे टैलेंट में दम है।
नहीं तो यहाँ तो डिमोरलाइज करके तूने तो मेरी नाक कटा दी, तूने तो ऐसा कर दिया, तूने तो, और ऐसा सुनते सुनते मतलब हम मतलब इन लोगों से इतना थक गए थे। तो फिर बाद में हमने अपने टैलेंट को लोगों को दिखाया। अब जो कर रही हो दुनिया देख रही है, अपना वेबिनार अमिताभ भी देख रहा है। अब हमको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती है और ईश्वर सहायता करते हैं। तो ये जो वातावरण का दोष है उसको दूर करना बहुत जरूरी है। करप्शन को दूर करना बहुत जरूरी, नहीं तो टैलेंट आपका, अरे वशिष्ठ नारायण के लाश को बाहर में फेंक दिया, उतना बड़ा विद्वान को, सब मतलब उनके बॉडी को जलाने वाला कोई नहीं था। इतना बड़ा वैज्ञानिक, इतना बड़ा मैथमेटिशियन को जो अमेरिका में नाम कमा के आया, विवेकानंद ने कितना बड़ा काम किया। तो यहाँ पर टैलेंट की पूछ नहीं है, यहाँ पैसा और बस मतलब चमचागिरी का जमाना है, चमचागिरी करते रहो। तो ये इस बात पर भी ध्यान देना, इस पर भी क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर राजेश वर्मा, आप क्या बोलेंगे? डॉक्टर राजेश वर्मा। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? कैन यू हियर मी? बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। सर मुझे बहुत ही बढ़िया लगा कि हाँ। आपके जो विचार हैं वो ऑलमोस्ट आज जो भारत की प्रेजेंट जो स्थिति है हिंदुस्तान की, उसके लिए उस पर प्रकाश डालना है। और इसको दबा दबा के रहने से नहीं चलता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, सोबर बनते हैं, कभी उससे मिल जाते हैं, कभी उससे मिल जाते हैं। गंदा को गंदा बोलिए, बदमाश को बदमाश बोलिए, बदमाश को अपने लाइफ से हटा दीजिए। और हम तो हटा देते हैं। फिर मेरे 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 पास कभी मत आना तुम। और हाँ, ऐसे करप्टेड लोगों को अपने जिंदगी में आने ही मत दीजिए। और जिंदगी भर दूसरे का खाता है, अगले जन्म में वो हम लोगों माने वो जिसका खाता है उसका कुत्ता बनेगा या उसका नौकर। जी सर, जी। और रामकोमल सर ने जो बात बताई है ब्यूरोक्रेसी की, बहुत ही सटीक है। और ये हम अपने इंस्टीट्यूट्स में बहुत ज्यादा फॉलो कर, मतलब झेल रहे हैं इस चीज को। समझ लीजिए कि जो क्लर्क्स हैं, इनफैक्ट वो चला रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज को। ब्यूरोक्रेट अधिकारी नहीं चला रहे, प्रिंसिपल्स नहीं चला रहे, क्लर्क चलाता है। हाँ, क्लर्क चलाता है। बस ये मेरे लिए क्लर्क को पैसा चाहिए। हाँ, क्लर्क को पैसा चाहिए, और जो चाहे लिख देता है, उसको बस ऊपर वाला साइन कर देता है। बस यही हो रहा है। और हमारे यहाँ बहुत सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं जहाँ पर उनके अगेंस्ट में लिख देगा कि ये विद्वान नहीं है, तो लोग मान लेंगे विद्वान नहीं है। नहीं है। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल यही बात है। दिस इज द बिगेस्ट इशू वी आर फेसिंग। एंड हमारे रिसर्च के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज में रिसर्च के लिए अगर सबसे बड़ी परेशानी है तो दीज क्लर्क्स एंड द डायरेक्टरेट इज द मेजर रिस्पॉन्सिबल। वो हमें नहीं आगे बढ़ने देते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा, हमने तो बहुत लड़ाई किया, बहुत संघर्ष किया है। बाकी राम ने बताया, वो मॉडल्स जो बताए बहुत ही बढ़िया और हैं, ताकि हम कुछ अंदाजा मुझे लगा। तो आई विल ट्राई टू बी रेगुलर इन दीज मीटिंग्स। Yes, you should be regular, and I have included you in my this webinar group also. प्रभावती जी, आप क्या बोलोगे? आप तो शुरू में अच्छा बोल रहे थे, अभी क्या बोलोगे? अभी के डिस्कशन में क्वालिटी एजुकेशन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। जी सर, हमारे आरकेपी सर ने जो बताया भविष्य को लेकर के और देश को लेकर के बहुत ही अच्छा है। ये बात कई बार हमने सुना था, लेकिन मैंने पहली बार क्लास देखा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत अच्छा लगा भविष्य को। मैंने आज तक सिर्फ सोचा था, एक काल्पनिक की थी, लेकिन आज मैंने रियल में देख लिया और मुझे बहुत खुशी हुई। इतनी खुशी हुई है कि मेरा अंदाजा का बहुत अच्छा लगा। मुझे नॉलेज भी बहुत अच्छे मिली। और ये जितने बात बताई है वो करोड़ों लोगों को दिल की बात उन्होंने कह दिया। और इनके संघर्ष को मैंने लेकर के मैंने पढ़ा था गूगल पे और सारे। मैं इनको पहले देखी नहीं थी, मैं जानती नहीं थी, लेकिन मैंने किसी के माध्यम से सुना, देखा और धीरे धीरे मैंने इनसे कहा और हमारी इन्होंने मदद की और मुझे समझाते बताते हैं और हिम्मत देते हैं। खड़ा होने का लेकिन हमारे आरकेपी सर का बहुत बड़ा योगदान है कि मुझे समझाते हैं, बताते हैं और
इतनी अच्छी नॉलेज मैंने कभी अपने इतनी उम्र में मैंने कभी इतने अच्छे किसी टीचर से नहीं मैं मिली। बहुत ही अच्छा लगा बता करके और जो इन्होंने सोचा बहुत ही अच्छा सोचा है। अच्छा ये बहुत बहुत अच्छा अच्छा, मैं बहुत बहुत खुश अच्छा, हूँ बहुत अच्छा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करूँगी कि वो आगे बढ़े और हमारे देश का नाम रोशन करें। डॉक्टर अविनाश प्रसाद, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा, अभय कृष्णन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अभय कृष्णन जी प्रोफेसर हैं और उन्नतिशील प्रोफेसर हैं। सर डॉक्टर आप अभय सभी को कृष्णन, हाँ मेरा आप सभी को मेरा नमस्कार सर। हाँ, मैं दो नमस्ते। तीन चीज जानना चाह रहा था, जैसे कि मैं तो ज्यादा टाइम, क्योंकि सर मैं ऑन द वे था तो कई बार हाँ नेटवर्क का कनेक्शन जा रहा था। दो तीन चीज को मैं जानना चाहता हूँ सर। अभी आप कहीं पे जाएंगे तो कई तरह यूनिवर्सिटी, स्टेट एक है, यूजीसी एक है, बट यूनिवर्सिटी एक ही जगह पे 10 है। कभी आप देखिए मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, इससे क्या रीजन है? राम कोमल जी, सर थोड़ा-सा प्रश्न से कीजिएगा, एक डिफरेंस बता रहे हैं कि अमंग द यूनिवर्सिटीज़ क्या अभय सर? मतलब कि व्हाट इज़ द नहीं डिफरेंस इन मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी एंड द पटना यूनिवर्सिटी ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, नो 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 सर, मैं ये नहीं जानना चाहता कि डिफरेंस क्या है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक स्टेट में कितनी यूनिवर्सिटीज होने चाहिए। ये जो फार्मूला है यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि 1950 से लेके 2025 तक कि किस ग्रोथ से, किस चीज़ से ये बढ़ा है। हमारे पास 4 फेड आईआईटी होती थी, आज 23 आईआईटी हैं। ये पॉपुलेशन के एवरेज के हिसाब से, एवरेज पॉपुलेशन के हिसाब से यूनिवर्सिटियों का स्थापना किया जाता है और कुछ होता है विज़न ऑफ फ्यूचर, इसकी वजह से यूनिवर्सिटियों का स्थापना किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि सरकार ने अपने रिसोर्स कम कर दिए और प्राइवेट पार्टनर को बुला लिया। इसमें उनका ये था कि वो सोशल सर्विस करेंगे, लेकिन उल्टा हो गया, तो वो बिज़नेस एंटिटी मान बैठे। इस वजह से दिक्कत हुई है। ठीक है सर, दूसरी चीज हमारे ये देश में जानना 5 चाहता लेयर हो गए हैं। पहला लेयर सारे इंडियन इंस्टीट्यूट, दूसरा लेयर सारे नेशनल इंस्टीट्यूट, तीसरा लेयर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, चौथा लेयर स्टेट यूनिवर्सिटी, पांचवा लेयर ऑटोनॉमस, छठवां लेयर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की संख्या अब सरकारी यूनिवर्सिटी से ज्यादा बढ़ जाएगी। बड़ी मुश्किल से अब 10,000 एमबीबीएस की सीट हुई है और 22,000 प्राइवेट सीटें हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 100 सीटें सरकार की डेंटल की, बीडीएस की और 51 सीटें प्राइवेट की हैं। दूसरी चीजें से मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो, जहां तक मेरा मानना है, जो एजुकेशन का जो मेन बेस है अप टू द 10th है, 10वीं क्लास तक जो बच्चे पढ़ गए, जो अच्छे कर गए, उनमें संभावना ज्यादा होती है कि आगे ज्यादा सक्सेस करे। बाकी में भी होती है, लेकिन हमने ये देखा जो बुक्स है, एक एनसीईआरटी की बुक्स है, एक आईसीआईसी की बुक्स है, और पता नहीं बड़ा बड़ा बहुत सारे तरह के बुक्स है। इसके क्या एजुकेशन में एक जैसा एजुकेशन नहीं हो सकता सभी जगह? क्या गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि नहीं आपको सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ानी है? या यूनिफाइड हो, आप कहीं ज्यादा यूनिफाइड हो, लेकिन स्टेट मैटर्स अपने आप में डिफर होते हैं। स्टेट को अथॉरिटी मिली हुई है कि अपने यहाँ के सिस्टम के हिसाब से, अपने यहाँ के लोगों के हिसाब से, उनको डेमोग्राफी के हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इसलिए हर प्रदेश का अपना बोर्ड भी है, सीबीएसई भी है, आईसीएसई भी है। तो हर प्रदेश को यह मौका मिला हुआ है कि अपने बोर्ड में अपने हिसाब से रखे। जैसे एनसीईआरटी एक बॉडी है जो पूरे देश को चला रही है, वो उसका सारा बोर्ड केवीएस लेता है। तो कुल मिलाकर के जो आपका प्रश्न है कि क्या कोई यूनिफाइड एजुकेशन सिस्टम देश में लाया जा सकता है? अगर हम वन टाइम इलेक्शन ला सकते हैं, वन एडमिशन पोर्टल ला सकते हैं, तो क्या वन एजुकेशन नहीं ला सकते? मुझे लगता है आप ये पूछना है। ये अभी संभव नहीं हो पा रहा है और हमें लगता है जब तक हम विकसित भारत नहीं होंगे संभव नहीं हो पाएगा।
क्योंकि डेमोग्राफी, इंटेलिजेंस, पॉवर्टी, पेइंग कैपेसिटी, बहुत सारे इंडिकेटर हैं। अब तो मिड डे मील की वजह से इनरोलमेंट होना शुरू हुआ, नहीं तो हमारे यहाँ यूपी की स्टडी अभी पोस्ट मिड डे मील इवैल्यूएशन किया हमने और गिरी इंस्टीट्यूट ने, ये पाया कि मिड डे मील की वजह से इनरोलमेंट अच्छा हुआ, तो आईसीटी की वजह से अब फिर डिटोरिएट हो रहा है सरकारी विद्यालयों से। सरकारी विद्यालयों में मीडियम भी इंग्लिश किया गया, कुछ कंपोजिट विद्यालय खोले गए लोअर पर। तो लोअर पर आपके यहाँ आपके बिहार कैडर के अधिकारी हैं मिस्टर अग्रवाल, आईएएस हैं, वो हमारे यूपी का भी बहुत कंसल्टिंग करते हैं, एंड ही इज पायनियर अबाउट दिस स्ट्रेटजी दैट ही मेड। हमारे यहाँ के दूसरे आई के साथ में उन्होंने प्लानिंग के अलावा उसका रिन्यू भी करा, कभी आप देखिए पढ़िए कोई तो मतलब ही इज मास्टर पर्सन, ये एजुकेशन सेक्टर का इज डायरेक्टर और बिहार कैडर के हैं, लेकिन पता नहीं कैसे दिल्ली और लखनऊ ज्यादा रहते हैं। ठीक सर, आप खत्म मैटर वही है सर, अब इसको कंक्लूड कराएं। हाँ, बहुत अच्छा। और अनुराग वैश्य, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अनुराग वैश्य, और अभी डॉक्टर पूजा शर्मा भी आई हैं। डॉक्टर पूजा शर्मा, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? पूजा शर्मा, डॉक्टर पूजा शर्मा। ओके, यू हैव कम लेट, तो आपने सुना नहीं, अब बहुत अच्छा हुआ। तो आप लोग जो नए आए हैं वो काइंडली मेरा नंबर नोट कर लें, 7903595877, 7903595877। कल बहुत अच्छा एक और फॉरेस्ट ऑफिसर बोलेंगे फॉरेस्ट के संबंध में, तो कल जरूर शामिल होइएगा। और आज की रिकॉर्डिंग भी हम लोग दे देंगे। आज का बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, उसके लिए राम कोमल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब चंद्रेश्वर खान साहब से कहूंगा कि आप अपना अमृत बानी बोलें और कंक्लूजन दें, क्योंकि टाइम हो गया है। चंद्रेश्वर खान साहब, चंद्रेश्वर खान साहब। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किन शब्दों में धन्यवाद दिया जाए बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं बैठे बैठा था जहाँ अमृत निकलता है वहाँ वृक्ष है, और जहाँ है तो उसी के आसपास में अमृत है। अभी की स्थिति ये हो गई है कि अमृत के लिए झगड़ा हो रहा है और वृक्ष काम के लिए फूल की कमी हो गई। जहाँ कुछ माल मटेरियल है वहाँ भागम भाग है, लेकिन जहाँ के धार को बढ़ाना है वहाँ डॉक्टर राम कोमल जैसे लोग हैं, अमिताभ जी जैसे लोग हैं, उमेश जी जैसे लोग हैं, डॉक्टर राजेश हैं, अभय जी हैं, आगे बढ़ेंगी तो आशा हमें है। क्योंकि मेरा मानना है कि वर्ल्ड इंस्टीट्यूट से भी बड़े अच्छे अच्छे लड़के निकल जाते हैं और बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से भी गड़बड़ निकलते हैं। भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया नेतरहाट और आईआईटी का, और ये भी सौभाग्य दिया वशिष्ठ जी से पढ़ने का, क्योंकि नेतरहाट का नियम था कि जब लास्ट ईयर में जब वो लोग हायर सेकेंडरी की परीक्षा दिए थे तो हम लोग उसी साल गए थे, तो 2 महीना उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया था। गौर करके देखेंगे तो वशिष्ठ जी बहुत साधारण परिवार, लेकिन वो एक ऊंचाई पर गए। एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिला, फिर अच्छे लोग मिले, फिर गए। कठिनाइयां बहुत हैं, कठिनाइयां बहुत हैं। इन कठिनाइयों के बीच
हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। अमिताभ जी की पीड़ा को, वेदना को मैं समझता हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया में वन अपमेंटशिप कि जैसे एक आदमी आगे बढ़ रहा है तो उसके काम को भी लेकर के दूसरे को दे देता है। तो ऐसे बीच में तेजस्वी लोग बन जाते हैं। और राम कोमल जी अपने एक उदाहरण, ऐसे कई उदाहरण यहाँ हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि ऐसी गोष्ठियों से, ऐसी संगोष्ठियों से हम लोग नए नए चीजों को उतारें, नई नई चीजों को लाएं, और हम लोग जहाँ जहाँ सपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ कहीं ऐसी बातें हो रही हैं जिसका विरोध कर सकते हैं, वो करें। क्योंकि दुनिया को खतरा बुरों के बुराई के कारण नहीं, अच्छों की दुर्बलता के कारण। बिल्कुल बिल्कुल। घने अंधकार के कारण रात नहीं होती है, सूरज के निस्तेज होने के कारण रात होती है। तो ये आप ये देखेंगे कि अंधेरा का अपना एक स्वभाव है, लेकिन अंधेरा वास्तविकता नहीं है। यदि घनघोर अंधेरा है और वहां एक मोमबत्ती जला दिया जाए तो अंधेरा भाग जाएगा। अंधेरा का मतलब है प्रकाश की कमी, प्रकाश का अभाव, प्रकाश का नहीं होना। तो उस प्रकाश को हम बढ़ाएं, क्योंकि प्रकाश रियलिटी है, अंधेरा रियलिटी नहीं है। दैट इज एब्सेंस ऑफ लाइट। तो लाइट को यदि हम बढ़ाते हैं, तो कस्टमर की भी बातचीत हो रही थी, उसको हम डिलाइट करते हैं। हम सभी एक दूसरे के कस्टमर, हम उसको डिलाइट कर रहे हैं या उसको कस्टमर समझ करके कष्ट से मरने के लिए छोड़ रहे हैं। जहां कष्ट से मरने के लिए छोड़ रहे हैं वहां गुणवत्ता नहीं है। जहां हमारे मुंह से निकल जाता है कि कृष्ण हमारा, कि ये हमारा कृष्ण है, वहां सेवा आने लगती है, वहां गुणवत्ता बढ़ने लगती है और बहुत कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कमल, आपको सारे आयामों को लाने के लिए, और अमिताभ जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे हीरो को चुनने के लिए जो लाते हैं। जोशी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि लोगों का उत्साह जिस तरह से बढ़ाते हैं। अभय कृष्णन जी हैं, डॉक्टर राजेश आज आए हैं, प्रभावती बेटी आई हुई है, विनय जी सारे चीजों का रिकॉर्ड करते हैं। तो हम सभी एक दूसरे के लिए कर्तव्य हैं। अपनी देश को, अच्छे लोगों में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है कि वो अच्छाई का साथ नहीं देते हैं। हाँ, बहुत बड़ा बात, बहुत बड़ा बात, बहुत बड़ा बात बोला आपने। यदि दो बदबू तुरंत जुट जाएगा, दो अच्छा तुरंत अलग हो जाएगा। तो एक ऐसे वातावरण का सृजन करें कि तेज जहां है उसके तेज को हम बढ़ाएं, उसके तेज को हम घटाएं नहीं। मैं जानता हूं कि एक बार मैं पीछे खड़ा था बगल में और मैं सुन रहा था, नहीं तो उनका बेस्ट फैकल्टी अवार्ड है हम लोगों का, असल घट जाएगा। हम बोले हमको मत बुलाना, क्योंकि ऑर्गेनाइजर ने हमको इनॉग्रेशन के लिए बुलाया, तो हम इनॉग्रेट करके चले आएंगे। तो उसको वहां बोलना मेरा इसलिए जरूरी था। फिर हम वहीं नहीं रुके, हम बोले देखो प्रोग्राम में हम क्लास नहीं लेंगे, लेकिन तुम लोगों का पहले ट्रेनिंग लेंगे, क्योंकि हमने अपने काम से सुन लिया। अच्छे लोगों को मौका लगता है, पावरफुल लोग। बेटा 1 मिनट रुको, गुड़िया का फोन आ रहा है। तो सच्चा आदमी जो है वो निर्भय होता है। हेलो, जो निर्भय है आजकल वैसे लोग पसंद नहीं किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करते। हम लोग ऐसे वातावरण का भी सृजन करें कि हम एक दूसरे के लिए, क्योंकि क्वालिटी पर बात हो रही थी और मैं उसमें जोड़ते चलूं और डॉक्टर राम कोमल को धन्यवाद देते चलूं कि दुल्हन वही जो पिया मन खाए। तो
क्वालिटी भी वही जो कस्टमर के मन में है। तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, देश का रिक्वायरमेंट क्या है, स्थिति हमारे हाथ से निकल गई। क्योंकि आप ये देखेंगे, जो बेचारा कहीं पढ़ा नहीं, वो यूनिवर्सिटी खोल करके चांसलर हो गया। अब उससे आप क्या अपेक्षा कीजिएगा? उसके पास तो पैसा, उसको पैसा कमाना है और सरकार ने उसको अनुमति लालू की बेटी एमबीबीएस हो गई। एमबीबीएस का फुल फॉर्म पूछ लीजिए, नहीं बता पाएगी। नहीं, उसको उसकी दोस्त नहीं है, क्योंकि मिल रहा है बाजार में, जब पैसे से मिल रहा है तो जिसके पास पैसा वो खरीद लेगा। हमारा ये काम है कि आपका पैसा से खरीदा हुआ है, इसका वाजिब है तो हमको वाजिब बनाते। So we must have a voice, the customer's voice, the people's voice. If that will come up, the talent will go up. Thank you very much, Dr. Ram Komal, for enlightening us kindly. As Joshi Sahab was requesting कि जब कभी अमिताभ जी आपको आमंत्रित करते हैं तो आप आए विभिन्न विषयों पर, बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसी तरह से नए नए आयामों को खोजते जाइए। नए आयाम को खोजेंगे तो आपको व्यायाम करना पड़ेगा, वो वैसे नहीं होगा। और हम सभी को आपने जो डिलाइट किया उसके लिए आभार और आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राम कोमल जी, अब अगला बात हम आपसे करेंगे। 2 वीक का तो हमारा बुक है, 2 वीक के बाद हम फिर आपका कोऑपरेटिव पर सुनेंगे। और चूंकि मैं इंटरनल ऑडिटर भी था एसएफसी में, ग्रेन्स के बारे में जो आपने बताया उसका हमको बहुत आइडिया है, और गवर्नमेंट रूल्स का और करप्शन का भी हमको एक पैसा आइडिया है। और इसीलिए मैंने अपना फ्री में अपना वेबिनार ग्रुप खोला है, जिससे कि हम बुरों को बुरा कह सकें, अच्छों को अच्छा कह सकें और क्वालिटी को बढ़ा सकें। जो बढ़ने में समर्थ हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते, बदमाशों के आक्रमण से उन लोगों को आगे बढ़ाएं। और आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है। हम लोग कल फिर मिलेंगे। फॉरेस्ट ऑफिसर अरावली पर बताएंगे, अरावली को कैसे उसमें हमारी कहाँ जरूरत है, और वो भी बहुत अच्छा डाटा देते हैं। और डाटा के साथ हम समझेंगे। और टीएनए के जो ट्रेनर्स हैं उनके लिए अरावली हिल प्रोजेक्ट का समझना और उनके लिए हमारी कहाँ जरूरत है इसको जानना बहुत जरूरी है। कल आप लोग सब कोई आइएगा। प्रभावती जी और पूजा मैम, आप इनसे मतलब इनसे हमने नंबर भी दे दिया है, और राम कोमल जी से नंबर लेके हमारे ग्रुप में जरूर आइएगा। क्योंकि मतलब सेंट के दुकान से आप गुजरोगे तो सेंट जरूर महकेगा, अगरबत्ती जलाओगे तो अगरबत्ती की सुगंध जरूर अच्छा लगेगा। तो अपने विद्वानों के ग्रुप में आइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा जैसा आज अच्छा लगा है। और विनय जी हमको आधे घंटे में ये भेज देंगे, क्या बोलते हैं, रिकॉर्डिंग भेज देंगे। हम सबको रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे, इसको बार बार सुनिएगा। और हम लोग फिर कल मिलते हैं पूरे उत्साह के साथ। सभी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद राम कोमल जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, और थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। चंद्रशेखर खान साहब, अमिताभ जी और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और रियली अगर देखा जाए भारत के ज्वेल हैं डॉक्टर राम कोमल प्रसाद। बस ये है कि इनको लार्ज कंट्री में रिकॉग्निशन मिले, ये मेरी बहुत बड़ी इच्छा है। थैंक यू वेरी मच। ये हम लोगों के सबके सहयोग से होगा।